Festival was, as you can see, completely ecstatic. Jagannath was the center of our lives. Lord Jagannath came to us before Radha-Landaneshwara came to us via Shamsundar. Shamsundar carved these beautiful deities. And they, like in San Francisco, were the center of all the devotees' lives. During Prasadam, we used to even speak about Lord Jagannath and Lord Jagannath, Subhadra, and Balaram's beauty. And we would race up from Prasadam just to sit at their feet and sing Jagannatha Swami, Nayana Patagahami Bhavatume. So by the time this event came, you can see how ecstatic the devotees are chanting. And in some cases, it was the first time that devotees from all these 3 European countries were together in one place. London Rath Yatra became so famous as the long walking yatra. Everyone directed Prabhupada towards the Vyasa-san, and he looked at it, then he looked around, and then he just shook his head a little and started to walk. And then when everyone realized that Prabhupada was going to walk in front of the cart with everybody else, it was like a wave went through the devotees. As they heard that this was happening, everyone started to dance. And it was quite amazing that there was this seemingly very small old man in the middle of all these tall, young, strong Western men. And he was completely directing them, just with a flick of his finger. They would lift off the ground and dance and spin and do whatever. And the number of mridangas that were being played and the vigor that they were being played with wasn't that the kirtan was particularly fast, but the way everyone was playing the mridangas, their hearts were in their hands the way they were playing them. We're holding hands and keeping a circle around Prabhupada to keep from anyone bumping into Srila Prabhupada. And it wasn't until actually later on, when the Chaitanya Charitamrita was translated by Srila Prabhupada, that we realized that this was all the same as in Chaitanya Charitamrita. Of course, this Rath Yatra became very famous because Prabhupada never sat in his Vyasa-san, which was there, and walked and danced the entire way. And what was the amazing thing was just days before, and weeks before, he had been very ill. He was in Mayapur in Calcutta. In the Chaitanya Charitamrita, it says that Rath Yatra cart seemed to be higher than Mount Meru. And then Prabhupada writes in the purport, there was a gorgeous Rath Yatra festival in London in 1973. The Guardian newspaper reported that the Rath Yatra cart seemed to be higher than Nelson's column. And he put that in the purport of Chaitanya Charitamrita.
There he is in Trafalgar Square, the center of the British Empire. Thousands and thousands of people. This was Prabhupada's triumphant moment. Looking out at thousands of people chanting Hare Krishna in Trafalgar Square. We made a lot of promises to the authorities regarding, how we would conduct ourselves, things we would and wouldn't do. We set up these tents. This is the one right with those yellow tents. In order to secure these tents with the lines you can see that come from them, we just drilled holes into the cement and drove iron stakes, pegs in there. Which was a total no-no for the authorities. But anyway, the festival went off. It was just really sensational with so many people. Prabhupada was very pleased, there was no doubt about it. Ladies and gentlemen, I thank you very much for your kindly participating in this great Ratha Yatra festival. I have already explained what is this Ratha Yatra festival. It is in commemoration of a grand visit by Lord Krishna along with his elder brother Balaram and his youngest sister Subhadra. The overwhelming memory of that festival is the dance. The dancing that just defied logic, because you just kept going and going and going and just wanted more and more and more and just wanted it to last forever. And everybody
Hare Krishna. I just want to see if all the parents are there or not. So, any of you who are without the parents? Himakshi. Is Himakshi present with the parents? Great. Manya. Okay, great. Yeah, you can write like this, like Dani has written. Yes, my parents are with me. Manya. Are you alone, Manya? Because I don't see many attendees. Are you all maybe using same phone or same screen? Akshat Ashi, are you with your parents? Great. Tisya, welcome to the group. Okay. Gopi, are you with your parents? Yes. Super. Sachi Keshav. Radhika, I don't see Radhika. I think she was struggling to join in. Anyway, we'll move on. First of all, I would like to welcome you all in this. I won't say first, this is the fourth session, but we can say first because इसको हम आज से properly शुरू कर रहे हैं. We had just 4 students so far, and आज से हम लोग 12 बच्चे हैं. और parents को क्यों बुलाया है? The reason why also parents are invited in this is because ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी फैमिली वैल्यूज़ यहाँ से कॉमन हो जाएं. अगर बच्चे कुछ सीख रहे हैं, it's important that the whole family learns that. And this is not something which is a material subject. This is a subject of Bhagavad Gita. This is a way of living that we are going to, understand from here. So how, God becomes the center of our house, how family, the whole family shares the common values. Because जो हमारी बाइंडिंग होती है किसी के साथ भी, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, वो हमारी वैल्यूज पे होती है. When we share the common values, then we are all going to stay together in our relationships. Relationship bind होती हैं values के ऊपर. जो लोग सतोगुण में होते हैं वो लोग सतोगुण से रिलेट कर पाते हैं. जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तभी आते हैं जब अलग अलग गुण में लोग ऑपरेट करते हैं. कोई रजोगुण में या कोई सतोगुण में, they cannot actually have the common path. So ऐसे ही फैमिली में बच्चों को और पेरेंट्स को कॉमन वैल्यूज करने के इंटेंशन से I thought that the parents should also be a part of this. So this is a course of 52 weeks, which means 1 year. So which will be extended into another 1 year after that. But right now the curriculum, the content that I have is for 52 weeks. In these 52 weeks, we will have the classes 3 times in a week. Monday, Wednesday, Friday. We will try to keep it at this time, 8 o'clock, and the session will be 45 minutes. So 45 weeks ago. भागवत गीता है क्या? आप में से कुछ लोग तो ऑलरेडी डिवोटी हैं, निताय प्रभु हैं, समीर प्रभु हैं. आप लोग अगर सेशन में नहीं भी रहते हैं तो इट्स गुड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आप ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे समझते हैं. मेरा वैल्यूज से वहाँ मतलब है जहाँ पर जो लोग, दोज हु आर न्यू टू द कृष्णा कॉन्शियसनेस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दोज हु आर नॉट एबल टू, लेट्स से, see or attend this session for some reason, जैसे सरिता जी, शोभित जी, आप लोग हो सकता है बाद में 8 o'clock ज्वाइन ना कर सके, तो I'll be sending the videos, so at least आप videos देख सकें इसकी, so that you all are on one page. Because
पेरेंट्स के और बच्चों के दोनों के टेस्ट होंगे रेगुलरली. सो आई हैव लॉट ऑफ टेस्ट शीट्स which are there and दोनों के मार्क्स होंगे. So I think maybe for the first time बच्चे और पेरेंट्स एक ही क्लास में हैं और दोनों के टेस्ट होंगे and we'll see who scores better. It's going to be a healthy, good competition. Now we'll start with the session quickly because just 45 minutes we have. So, Bhagavad Gita, although many kids have already done this 3 sessions, उसमें उनको काफी कुछ समझ में आ गया base क्या है भागवत गीता का, but I'll still very quickly talk about it. Bhagavad Gita, as we all know, was spoken in a battlefield. So एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये बैटलफील्ड में एक वॉर के अंदर, एक वॉयलेंट वॉर के अंदर ये नॉलेज दिया गया था, तो ये वॉयलेंस इतना ज़्यादा था उसके अंदर, तो उससे हमें लर्निंग कैसे मिल सकता है. तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है कि वॉज महाभारत जो बैटलफील्ड था, वॉज दैट एन एक्ट ऑफ वॉयलेंस और वॉज दैट एन एक्ट ऑफ नॉन वॉयलेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस वन सब्जेक्ट ऑफ अहिंसा. अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है. So kids, you can start with your notes now. Basically, आप लोग बहुत ही अच्छे notes बनाते हैं. दानी ने बहुत ही अच्छे notes share किए with all the realizations and all. So I want to also set the system of making the notes today before we move further. This is the most important thing, that we make the notes properly, because we are not into the learning process here. We are into the transformational learning process. This is the key point. हम लोग 15 साल तक पढ़ते हैं, 20 साल तक पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, but what do we keep with us is very little. उसका हम लोग बहुत थोड़ा अपने साथ में रख पाते हैं. वो अलग बात है कि वो बहुत ज़्यादा साथ में रखने लायक नहीं भी होता है, but ये जो हमारी लर्निंग है, ये हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है. तो ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग का मतलब क्या है? सबसे पहली बात ये है कि इसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है. बेसिकली एनी लर्निंग, द पर्पस ऑफ एनी लर्निंग शुड बी ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. या नॉलेज शुड ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ. ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कोई किसी को ट्रैवल करना है, ही वांट्स टू गो टू मुंबई, he goes to the train station, buys the ticket for the train, and then comes back home and pillow and sleeps. और वो कभी travel ही नहीं किया मुंबई. So unless we travel to Mumbai with that ticket, it's a waste of time to go to the platform and buy the ticket also. So वैसे ही हमको हमारा पर्पस हमें क्लियर हो कि हमें अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लानी है इस नॉलेज से, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन जब ही आएगी जब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पर्टिकुलर होंगे. आर वी एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्व्स और नॉट. सो लर्निंग एजुकेशन को, ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग को हमें समझना है कैसे करना है. सो आई हैव क्रिएटेड दिस वन फॉर्मूला. इट इज कॉल्ड WRITE, WRITE. You can make the notes of this, kids. WRITE. W stands for writing the notes. जब भी हम ये लेक्चर सुनते हैं उस टाइम पे साथ साथ में नोट्स बनाएं. ये तो आप लोग कर ही रहे हैं ऑलरेडी. R stands for realizations. जैसे दानी ने बहुत अच्छी realizations भेजी अपनी. What do you realize from that lecture? Give some time to that after the lecture. सोने से पहले, इवनिंग में करने का पर्पस यही है कि इवनिंग में आप सोने से पहले ये लेक्चर सुन करके सोने से पहले नोट्स बना सकते हैं, इसको रियलाइजेशंस लिख सकते हैं अपनी. I stands for internalization. WRI. I stands for internalize करना, यानी कि इसको अपने रिफ्लेक्सेस में लेकर के जाना, उस नॉलेज को, उसके बारे में डीपली सोचना, एब्जॉर्ब करना, स्पॉन्ज की तरह. जैसे एक स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज के अंदर अगर पानी डालेंगे तो उसके अंदर फिल हो जाएगा स्पॉन्ज. अगर पत्थर पे डालेंगे तो क्या होगा? नहीं जाएगा अंदर. सो वी हैव टू मेक अवर हार्ट एज ए स्पॉन्ज. हमारी बॉडी की रिफ्लेक्सेस में वो नॉलेज चली जाए.
ऐसा करना है, इंटरनलाइज करना है, उसके बारे में ध्यान से समझना है, लेकिन ध्यान करते हैं, ऐसा करना है उसको। T stands for ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप लिखिए कि मैं कल से इस नॉलेज के बेस पे व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू डू इन माय लाइफ। टुडे विल टेक अ लाइव एग्जांपल ऑफ दैट। हम आज जो सेशन करेंगे उसमें मैं सबको ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करूंगा कि WRITE के ऊपर हम लोग आज पूरा कर सकें। E stands for expressing to others। उसी नॉलेज को आप दूसरों से शेयर कीजिए। When you will share this knowledge with others, then it will get deeper inside you. Your commitment and understanding both will go deeper inside you. So WRITE, writing the notes for W, realizations, writing the realizations is R. I is internalization, अपने अंदर absorb करना knowledge को। T is writing the transformations, T transformation, and E is expressing to others। अब जैसे आप तो पूरी फैमिली साथ में आ जाते हैं, तो उसके बाद अपने फ्रेंड्स को फोन करके बता सकते हैं आई लर्न दिस थिंग टुडे। तो उसको एक्सप्रेस कीजिए, उस नॉलेज को अंदर मत रखिए, उसको बाहर निकालिए। इट हैज टू बी वर्बलाइज्ड, वोकलाइज्ड फ्रॉम यू, इट हैज टू कम आउट ऑफ यू, सो देन इट विल स्टार्ट टू चर्न। अगर आप उसको बोल लेंगे तो चर्निंग हो जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये नोट्स मेकिंग का एक फॉर्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग का एक फॉर्मूला है, राइट, WRITE। Then we come back to the topic of ahimsa. I'm just keeping a watch. बात कर रहे थे कि we have to understand how। शिला प्रभुपाद कहते हैं वॉयलेंस क्या होता है और नॉन वॉयलेंस क्या होता है। नॉन वॉयलेंस जनरली मीन्स किलिंग एनीवन। Srila Prabhupada says non-violence generally means killing anyone, but actually non-violence means not to put others into any kind of distress। किसी भी तरह के distress में किसी को नहीं लेके आना, ये है non-violence। Not just killing, killing ही नहीं खाली, because ये समझिए कि हर एक चीज की परिभाषा, definition, it can be materialistic or it can be at the spiritual platform, और बहुत अलग हो सकती हैं। हमने material world के अंदर एनिमल्स को किल ना करना, इसको नॉन वायलेंस बोलते हैं, which is very important part of non violence। but non violence is beyond that, to understand कि क्यों उनको नहीं मारना है, क्यों उनको नहीं मारना है। why should we not kill the animals or insects or anybody? we have to understand that, because अगर हम लोग किसी एनिमल को नहीं मारते हैं, मार के खाते नहीं हैं, मीट नहीं खाते हैं, तो वो तो हमने बोल दिया कि ये तो वायलेंट है और इसको नहीं मारना नॉन वायलेंस है। बट हम कभी कभी मच्छर मार देते हैं, अपने हाथ में मच्छर आता, मच्छर को मार देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो बिग वायलेंस, एज गुड एज ईटिंग एनिमल। सो हम लोग उसके लिए कॉन्शियस क्यों नहीं है? क्योंकि हमें डीपर प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस जब पता लग जाएगा कि नॉन वायलेंस क्या है, तब हम लोग उनको मच्छर को भी नहीं मार पाएंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट एवरीबडी इज इन द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। सारे जीव जो है अपनी एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अंदर हैं। सभी कितने जीव होते हैं? हाउ मेनी काइंड ऑफ स्पीशीज आर देयर? Dani, Gopi, anybody knows how many? 84 species. Yeah, 84 lakhs. So 84 lakhs तरह के species होते हैं। अब 84 lakhs तरह के species क्या क्या होते हैं मालूम है आप लोगों को? स्टार्ट करते। एक्वेटिक्स कितने तरह के होते हैं? How many forms are inside the water? So there are 9 lakh species which are inside the water. Oh, Divyam knows. And how many are the plants and trees? So 20 lakhs plants and trees, 11 lakh species are insects and reptiles. You can note down. 10 lakh species are of birds, and 30 lakhs are the animals, four-legged animals. And we are left with only 4 lakhs. 4 lakhs are the human species, human beings. So now you will say, how can humans be
Okay, repeat. 9 lakhs aquatics living under the water. 20 lakhs are the plants and trees. 11 lakhs insects and reptiles. 10 lakhs birds. And 30 lakhs kinds of. अब देखिए हमने कितने टाइप के अभी तक, और 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज, हमने कितने टाइप के देखे होंगे स्पीशीज अभी तक? बहुत कम. अगर वो एक्वेटिक्स की भी बात करेंगे हम, तो हमने 100 तरह की मछली देख ली होंगी, या एनी काइंड ऑफ एक्वेटिक्स इनसाइड द वाटर, 100, 200, 300. हाँ, किसी जियोलॉजिस्ट ने भी अगर कुछ थीसिस किया होगा तो 1000, 2000, 5000 का कर लिया होगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता. हाँ, सो लेकिन भगवान कहते हैं कि 9 लाख काइंड ऑफ स्पीशीज आर लिविंग अंडर द वाटर, not 8,84,000, exactly 9 lakhs. So ये सारे species. Another thing is human species. So you might be surprised कि हम तो एक ही तरह के humans को देखते हैं, but ऐसा नहीं है. ये जितनी भी species होते हैं, ये ऐसे हमारी bodies के basis पे नहीं होते, consciousness के basis पे होते हैं. हमने जो desire किया होता है अपनी last life में, जैसा हमने last डिजायर करते हैं, उसी डिजायर के हिसाब से हमें नया लाइफ मिलता है, नेक्स्ट लाइफ मिलता है. सो देयर कैन मेनी डिजायर्स, देयर आर 400,000 काइंड्स ऑफ डिजायर्स, कॉन्शियसनेस विद इन ह्यूमंस आल्सो, बेस्ड ऑन व्हिच दीस बॉडीज आर देयर. से लिविंग इन कोरिया, उनका जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत अलग है हमसे. वो एक एनिमल्स को कच्चा खा जाते हैं, टेबल पे रख करके चॉप करके हाथ के हाथ खा जाते हैं, रॉ फ्लैश में खा जाते हैं वो. देयर कॉन्शियसनेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल हु आर नॉट इवन ईटिंग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एंड देयर कॉन्शियसनेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सेंटली फिगर्स. सो कॉन्शियसनेस बहुत अलग तरह का होता है. जिस तरह का कॉन्शियसनेस होता है उसी उतने ही तरह के ह्यूमंस होते हैं. तो देयर शास्त्रों में लिखा है कि 4 लाख काइंड ऑफ ह्यूमन स्पीशीज. तो 84 lakhs इस तरह से ये स्पीशीज होते हैं. सो वन थिंग इज कॉमन, ये लोग कैसे भी इनकी बॉडीज हैं, कैसे भी इनकी बॉडीज हैं, एक चीज बहुत कॉमन है, वो ये चीज है कि दे आर ऑल मूविंग इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी. सारे जीव जंतु अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं. आप ये देखिए, हमारे को जो स्कूल की नॉलेज मिलती है उसमें शायद हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन स्क्रिप्चर्स के अंदर बहुत परफेक्ट नॉलेज होती है, टोटली कंप्लीट, विदाउट एनीथिंग मिस्ड. So, voice is cracking. Okay, let me just continue. Radhika, can you hear me properly? Is my voice cracking? Is it okay now? Yes means you can hear me properly. Better now. Okay. Okay, great. So we have to understand one thing. We are the spiritual beings in the human body. We are not the human beings, in the spiritual body. We are the spiritual beings. हमारे को ये बॉडी ह्यूमन बॉडी मिली है. ह्यूमन बॉडी किसी पर्पस के लिए मिली है. ह्यूमन बॉडी हमारे को हमारे स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए मिला है. हमें अपने स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना है. विल कम टू व्हाट द स्पिरिचुअल जर्नी इज. वी एज अ सोल, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, वी आर अ सोल हु इज वेयरिंग 2 kinds ऑफ बॉडीज, एक इनर बॉडी और एक आउटर बॉडी. हमने कहा था ना, एक सटल बॉडी और एक ग्रॉस बॉडी. ये आप सभी को पता है. तो some are wearing the human body, some are wearing the birds body, some are wearing the aquatics body, some are wearing the animals bodies or trees bodies. Bodies सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक चीज सबके अंदर कॉमन है. वो क्या है? all of them are in their spiritual journey. all of them are in their spiritual journey. सब लोग भगवान के पास, भगवान के रास्ते में जा रहे हैं, और हम किसी को भी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को हैम्पर करने का राइट नहीं है.
जैसे ही हम उनकी बॉडी को कोई टॉर्चर करते हैं, जैसे हम उनको कोई मेंटल टॉर्चर देते हैं, किसी को भी, इवन टू डिफरेंट अनदर ह्यूमन, देन वी आर एक्चुअली, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग वायलेंस टू देम. वंस अगेन आई ट्राई टू गिव यू एन एग्जांपल. हमारे को ये जो बॉडीज है, किसने दिए सारी बॉडीज ये हमको? हु गिव अस ऑल दीज बॉडीज? Krishna. Yes, Krishna gave us these bodies through Mother Nature. So Mother Nature ने हमको ये body दिया under the instruction of Krishna. ये body ऐसे ही है जैसे जैसे एक कार मिल जाता है ड्राइवर को, सबको जयपुर जाना है. Everybody has to go to Jaipur. There are, let's say, thousands of people who have to all go to Jaipur. Now, जिसको साइकिल चलाना आता था, जिसने इच्छा रखी थी, उसको साइकिल मिल गया जाने के लिए. Dani, you're not able to hear me? Okay, I'll go on. I'll send you the recording in case you're not able to hear me. So, अगर बीच में आ जाती है आवाज तो बहुत अच्छा है. So, किसी को साइकिल की किसी ने इच्छा करी, किसी ने जहाज की इच्छा करी, किसी ने कार की इच्छा करी, जिसने जो व्हीकल की इच्छा करी उसको वैसा व्हीकल मिल गया. तो लेकिन सब जा कर रहे हैं, सब जा रहे हैं जयपुर की तरफ. जिसने ऑफ कोर्स बाइसिकल की इच्छा करी थी उसकी स्पीड स्लो हो गई, जिसने जैसी इच्छा करी वो उतनी स्पीड से वहां पहुंचेगा. नाउ मदर नेचर ने उनको सबको सारे व्हीकल्स प्रोवाइड किए. और भगवान ने वो सारे भगवान के पार्ट्स हैं सारे. वो जो लोग हैं, thousands of people, they are the parts of. Video paused but audio is okay. Okay, I'll repeat. हम बहुत सारे जीव हैं जो भगवान के अंश हैं, और ऐसा समझिए सबको जयपुर जाना है. जयपुर जाने के लिए सबको व्हीकल तो चाहिए. जिसने जिस व्हीकल की डिजायर करी, मदर नेचर ने अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड उनको वो व्हीकल प्रोवाइड कर दिए, जिस व्हीकल की जिसने जैसे डिजायर की थी. सो उसी तरह से जैसे वो व्हीकल मिले उनको जयपुर जाने के लिए, वैसे ही हमारे को हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ये बॉडी मिल गई. मदर नेचर ने हमको वो ये बॉडी दे दिया, जैसा हमने डिजायर किया था, जैसा हमारा कॉन्शियसनेस था हमारी लास्ट लाइफ में, लास्ट मोमेंट पे, वैसा हमको ये बॉडी मिल गया. अब ये बॉडी एक व्हीकल है हमारे लिए, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए. दिस बॉडी इज नॉट अस. हम ये नहीं कह सकते ये कार मैं हूं. तो हम क्या हैं? हम ये सोल हैं, इस बॉडी के अंदर बैठे हैं, ड्राइवर हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट सभी जीवों को ऐसे ये बॉडी मिला हुआ है. किसी एनिमल को एक मिला हुआ है, ट्री को एक मिला हुआ है, एक्वेटिक्स को, अलग अलग जीव जंतुओं को सबको बॉडी मिला हुआ है, और ह्यूमंस को ह्यूमंस बॉडी मिला हुआ है. लेकिन सभी जीव, all of them, all of us, we are in the common journey, common spiritual journey. सब लोग भगवान के पास जा रहे हैं, सब लोग भगवान की तरफ एक एक स्टेप मूव कर रहे हैं. Is that clear? Is that getting clear now? The voice and the concept both? Great. हमें कौन बता रहा है ये बातें? हमें ये सारी बातें सुप्रीम अथॉरिटी लॉर्ड कृष्णा बता रहे हैं. इन सारी बातों पे हम डाउट नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज द मोस्ट परफेक्ट अथॉरिटी विद द हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंसी. हमने परसों बात की थी ना कि एक स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है, भगवान की पोटेंसी से ज्यादा पोटेंसी किसी की भी नहीं है. तो यानी कि उनकी जो नॉलेज है उसकी भी हाईएस्ट पोटेंसी होगी. ही इज अ क्रिएटर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट. वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग सारे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं. हाँ, 84 लाख स्पीशीज सारे डिफरेंट बॉडीज लेकर के भी सेम जर्नी के अंदर है. ठीक है. नाउ out of these 84 lakh species, some of the species are existing on this planet and some are existing on the another planet. That doesn't matter. They're all still in the same universe. हाँ, जैसे कि sun planet है, sun planet के अंदर भी होती है. There are some bodies, there are some living beings which only can survive inside the fire. So
what is sun? Sun is a ball of fire. Inside that ball of fire, there are living beings. And if they come out of that, they will not be able to survive. They cannot live on the land. They can only live inside the fire. Jaise fish. As we know, fish can live only inside the water. But fish cannot live outside the water. She cannot survive outside the water. Aise hi, inside the fire, inside the sun planet also, there are many living beings who can exist, who can live only in that. So just for you to understand, there are so many kinds of species that we are not even aware of. हम लोग को पता ही नहीं है species है और कहाँ पर है. तो जैसे एक्वेटिक्स होते हैं, एक्वेटिक्स के अंदर क्या होता है, आफ्टर द एक्वेटिक्स क्या होता है, वाटर ड्राई हो जाता है. व्हेन द वाटर ड्राइज देन वेजिटेशन कम्स आउट. वेजिटेशन जब कम आउट होता है तो दैट वेजिटेशन ग्रोज इनटू प्लांट्स एंड ट्रीज, और बड़े बड़े ट्रीज बन जाते हैं. सो उनकी लाइफ चेंज हो गई है, वो हर्ब्स में, ट्रीज में, प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. हाँ, सो एक्वेटिक लाइफ होती है, देन they have come to a vegetable life. Aquatic life से वो vegetable life में move हो गया. And now the trees are going to stand thousands of years. They come into trees, and trees are going to stand for thousands of years, and they are still in their spiritual journey. They will not move an inch. They will actually give us oxygen, fruits, vegetables, leaves, flowers, so much. They will give all that to us. And this is, one kind of life. There are so many lives like this who are giving us. So there is a kind of a universal brotherhood. प्रभुपाद जी कहते हैं जितने भी ये जीव हैं उन सबका आपस में एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है. क्यों है यूनिवर्सल ब्रदरहुड? Why is there universal brotherhood between all living entities? Why do you think so? Or do you think so? Same journey? No. Same journey is not the right answer for universal brotherhood. Of course, we are all in the same journey, but there is a different reason why. Yeah. Father is same. क्योंकि जब हम मदर के वूम में, जब हमें बॉडी मिला, it started, all our life journey started with one single cell inside mother's womb. सबका, everybody, सारे स्पीशीज का ऐसे हुआ था कि वो सारे स्पीशीज मदर की वूम में एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुए थे. लेकिन उस सेल के आने से भी पहले क्या आया था उसके अंदर? What came before the physical body came? After the soul, that one cell multiplied. पहले तो हमारे ऑर्गन भी नहीं थे, हमारे आईज भी नहीं थी, हमारे ईयर्स, हैंड्स, कुछ धीरे हमारे अंदर ही हमारा धीरे धीरे ऑर्गन्स निकलने शुरू हुए. कैसे हुए? जो उसके अंदर लाइफ आई थी, सोल, दैट सोल विच केम फर्स्ट, दैट गेव द लाइफ. उसने लाइफ दिया, उसको एक्सेलरेट किया, उसको बड़ा किया बॉडी को. बाद में वो बॉडी बाहर आ गई मदर के टमी से. जब वो बाहर आ गई तो वो बड़ी, तो सभी स्पीशीज की सेम जर्नी है. So all the species have gone through the same thing. Voice is breaking. I'll change the platform from the next time. So I'll send the recording this time. Then you can always, the next time I'll have a better platform. So sabki journey same hai. All the species like sparrows, birds, beasts, plants, they're all getting the food now. सबको food मिलता है. सबको sleeping accommodation, सबको अपने, they all know how to produce. वो अपनी पूरी फैमिली बनाना जानते हैं, फैमिली का टेक केयर करना जानते हैं. who is taking care of all of them? कौन है जो उन सारे, एक छोटी सी चींटी को भी उसका खाना मिल जाता है, हाथी को भी मिल जाता है, प्लांट को भी मिल जाता है, एक माउंटेन के ऊपर जो ट्री है उसको वाटर मिल जाता है ना? who is taking care of all of them? Yes. So God is so loving, so loving. वो हम सबका कैसे ख्याल रख रहे हैं. भगवान ने सारे एजेंट्स पे लगा दिया, 33 करोड़ देवी देवताओं को लगा दिया. देखो इनका ख्याल रखना,
एक इंद्रदेव है, हमारे को पानी देते हैं, सॉरी हाँ पानी देते हैं। सूर्यदेव हमारे को क्या देते हैं? लाइट देते हैं, सनलाइट देते हैं। आप सोचिए अगर हमारे को हवा मिलनी बंद हो जाए 5 मिनट्स के लिए, just 5 minutes, if the air supply is stopped, what will happen to us? There will be no one who will exist. But God loves us so much. He is giving constant supply of air and He is not charging anything from us. Nothing. He is not sending any bill invoice. आज हमारी गवर्नमेंट जो है पहले हमसे टैक्स लेती है, उसके बाद जब बिजली देती है तो बिजली का पैसा भी लेती है, टैक्स भी लेती है, सब कुछ। एंड भगवान हमको सब कुछ सेल्फलेसली करते हैं। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। गवर्नमेंट जो भी दे रही है वो भी भगवान से लेके ही दे रही है, कुछ भी ऐसा नहीं गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर सकती है। इट्स ऑल रॉ मटेरियल, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय गॉड ओनली। मदर अर्थ इज द प्रोवाइडर ऑफ एवरीथिंग दैट वी नीड, है ना। सो इसलिए भगवान हमसे सबसे सबसे बराबर प्यार करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स है, चाहे वो दूसरे कोई भी स्पीशीज है, क्योंकि सबको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सब लोग। अच्छा एक बात देखिए, इफ गॉड सो मच, हम तो ह्यूमंस हैं, अगर भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं, और ह्यूमंस को ये बोला जाता है कि जर्नी में ह्यूमन सबसे आगे हैं क्योंकि उनके पास मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं वो, तो वो उनकी गॉड रियलाइजेशन सबसे जल्दी आ सकती है ह्यूमंस की। तो आपको नहीं लगता कि हमको एज ह्यूमंस who are closest to God, we should be loving all the species much more than any other species? ये कि हमें अपने भगवान, अपने फादर के चिल्ड्रन को, सभी चिल्ड्रन को उसी तरह से प्यार करना चाहिए जैसे भगवान करते हैं। अगर भगवान इतना प्यार करते हैं हमसे, तो वैसा ही प्यार तो हमें भी करना चाहिए। सेल्फलेस अनकंडीशनल लव टू ऑल स्पीशीज, है ना। सो क्या हमें उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टॉप करने का, उसमें हमें कोई ऑब्स्टिकल बनने का राइट है? बिल्कुल भी नहीं है। वी कैन नॉट बिकम दी, ऐसा इमेजिन कीजिए जैसे एक मंदिर है, एक मंदिर है और मंदिर की बहुत सारी सीढ़ियां हैं, बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऊपर टॉप पे मंदिर है, और वो सीढ़ियां कितनी है? 84 लाख सीढ़ियां हैं, 84 लाख स्टेयर्स हैं। 84 लाख स्टेयर से होते 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 सब लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, और लास्ट स्टेप पे जा करके फिर एक गेट है, उसके अंदर भगवान जी का घर है। जस्ट अ वेग एग्जाम्पल। और जो ऊपर के जो स्टेप्स हैं उस पे कौन है? टॉप मोस्ट स्टेप्स के ऊपर ह्यूमंस हैं, क्योंकि ह्यूमंस को सबसे ज्यादा पॉसिबल स्टेप्स के ऊपर से हम होते 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 वहां तक पहुंचे हैं। आफ्टर सो मेनी लाइफ्स, कुछ लाइफ ऐसे पहुंचते 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 फिर कोई सिन करके फिर नीचे गिर जाते थे, फिर वापस ऊपर चलते 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 फाइनली वी आर ऑन द टॉप of the ladder पे टॉप पे पहुंच गए अभी। नाउ वी आर वेरी क्लोज टू गोइंग टू दी वर्ल्ड ऑफ गॉड। भगवान के प्लेनेट में एंटर करने के बिल्कुल पास में, हमें अभी दरवाजा सामने दिख रहा है, इट्स वेरी क्लोज। हम थोड़े और कदम बढ़ाएंगे तो हमें अभी ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि कोई ऐसी गलती कर दे कि वापस नीचे पहुंच जाए हम लोग उसी लैडर के, उसी स्टेयर के। नहीं करना चाहिए ना। सो it's very important that we should know what to do now to move forward in our journey. हमें अपनी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है, ये हमें सीखना है, ताकि हम दोबारा नीचे ना गिर जाएं, दोबारा हम नीचे ना गिरें। तो इसके लिए भगवत गीता में सब कुछ बताया है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी किस तरीके से भगवान की तरफ बढ़ सकती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग नॉन वायलेंस का पालन करें, अहिंसा का पालन करें। और अहिंसा का पालन करने का मतलब है कि हम किसी की भी जर्नी के अंदर बाधा ना बने। वी शुड नॉट बिकम द ऑब्स्टिकल इन एनीबडीज स्पिरिचुअल जर्नी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ये देखिए, किसी को भी हम हर्ट करते हैं फिजिकली, वो फिजिकल बॉडी तो नहीं है, लेकिन वो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं सारे। Nobody is actually a physical being. जैसे हमने कहा कि we are not the human beings having the spiritual experiences, rather we are the spiritual beings having human experiences. Same way, all the other bodies also, they are also all spiritual beings. आज एक मच्छर भी एक spiritual being है, क्योंकि इसमें spirit soul है। और कोई भी, एक वृक्ष भी,
एक स्पिरिचुअल बीइंग है, उसमें भी सोल है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि हमें किसी की भी लाइफ के अंदर उसकी स्पिरिचुअल जर्नी को रोकने का राइट नहीं है। और एक और बात, इनफैक्ट रोकने का राइट तो है ही नहीं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें सबको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तब भगवान कहेंगे मैं तुम्हारी स्पीड बढ़ा दूंगा अपनी तरफ लाने की। भगवान क्या कहते हैं कि अब आप लास्ट लेडर पे हो, 84 लाख लेडर चढ़ते 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 अब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए, अब कोई स्टेप नहीं है, अब बस दरवाजा है सामने। वी आर सो फॉर्चुनेट, ह्यूमन बीइंग्स आर सो फॉर्चुनेट कि अब वो बस दरवाजे के पास कुछ कदम चलेंगे। अब तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, नॉलेज इतनी पास पहुंच चुकी है। हमारे पूरे जन्मों में कभी ये सिचुएशन नहीं आई थी कि हम इतनी पास हो भगवान के। दिस इज क्लोजेस्ट सो फार कि हम भगवत गीता, भगवान के वर्ड्स, यानी कि भगवान स्वयं भगवान हमारे घर में आ गए हमें लेने के लिए। भगवान की जो गीता है दैट इज गॉड हिमसेल्फ, भगवान का अवतार है, वो हमारे घर तक पहुंच चुकी हैं। तो इसका मतलब वी आर सो फॉर्चुनेट नाउ, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक फ्यू मोर स्टेप्स एंड वी आर नेक्स्ट टू गॉड। भगवान थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस, इतनी पास हैं हम लोग। अब इसके लिए भगवान कहते हैं नेक्स्ट कदम आप कैसे बढ़ा सकते हो कि किसी को कोई सफरिंग मत दो, किसी को भी कोई सफरिंग मत दो। जो भी कोई इनकी स्पिरिचुअल जर्नी को रोक रहा है उसको सिर्फ तुम रोको कि इनकी स्पिरिचुअल जर्नी, इनको जो ऊपर चढ़ रहे हैं इनको सबको ऊपर चढ़ने दो। ये सब लोग एक्चुअली सफर कर रहे हैं परपेचुअली। इनकी सफरिंग को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि ये भगवान के पास इनकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। अगर हम इनको आगे बढ़ने में रोकते हैं, आगे बढ़ने में किसी भी तरह से रोकते हैं, दैट इज कॉल्ड वायलेंस, दैट इज कॉल्ड वायलेंस। यू नो, वी शुड ट्राई our best to distribute the real knowledge to people also। लोगों को हम लोग जब spirituality की knowledge distribute करते हैं, that is called non-violence। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान पुश करते हैं हम लोग, that is called non-violence। अगर हम लोग non-violence को लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबको भगवान के बारे में नहीं जानेंगे, वो इन पेन्स में रहेंगे ही रहेंगे। जब वो भगवान के बारे में जानेंगे तभी इन पेन से बाहर निकलेंगे। ठीक है, दिस इज द वैदिक लॉ। ये हमारे वैदिक लॉ होता है। क्लियर है ये बात अभी तक यहां तक? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। We cleanse our own past sinful reactions by connecting people to the Lord। हमने क्या कहा कि भगवान से कनेक्ट करके हम लोग अपने खुद के अपने भी सिंस क्लियर करते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट ह्यूमंस कर क्या रहे हैं? ह्यूमंस सबसे टॉप होने चाहिए कि दे शुड बी लाइक, अगर हमारे भगवान हम सबके फादर हैं एंड वी आर क्लोजेस्ट टू गॉड, we have the highest intelligence amongst all the species, so हमारा भी तो attitude बाकी सारे species के लिए fatherly होना चाहिए। Like we should look at every mosquito, every living being as like we are the father, because we are blessed। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमको human body मिल गई, तो we should also be fatherly। हाँ, instead of that आप देखिए कर क्या रहे हैं humans are eating them up। उन सारे जीवों को मार के काट के खा जाते हैं just for the satisfaction of the tongue। that is absolute violence। उनकी spiritual journey को पूरा खत्म कर दिया उन्होंने just for the gratification। Human don't mind to kill the other species just for the satisfaction of the tongue। they are stopping the spiritual journey of these animals, which is not fair at all। उसके भी ज्यादा देखिए हमारे स्टेट ऑफ लॉज जो हैं, उन्होंने भी उनके लिए, हमारे जो स्टेट लॉज होते हैं, गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, उन्होंने भी अलाउ कर दिया उनको कि चलो ये तुम मैन को नहीं मार सकते हो लेकिन एनिमल्स को मार सकते हो। हाउ कम, हाउ इज दिस पॉसिबल कि हम लोग एक तरह के स्पीशीज को तो मार सकते हैं, उनमें भी तो सोल है। वी शुड नॉट बी अलाउड टू किल एनी एनिमल, देयर शुड बी ए पनिशमेंट। अब कोई किसी व्यक्ति को मारता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है, एनिमल को मारता है तो पनिशमेंट नहीं मिलता। हाउ है ना?
वो अनफेयर है, क्योंकि जो लॉ मेकर्स है उन्होंने लॉज जब बनाए थे उन्होंने वैदिक नॉलेज पे नहीं बनाए थे, अगर भागवत तो बहुत फेयर लॉज एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए होंगे, वो लॉज नेचर, दे विल नॉट बी बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ कि वो गवर्नमेंट की अपनी नहीं होगी, कि गवर्नमेंट खुद समझते हैं कि हम तो बॉडी है, हम तो सोल नहीं है, तो बॉडीली लॉज बन जाते हैं। तो अभी क्या होगा कि जितने भी लोग अभी मीट खाते हैं, जितने भी लोग अभी टॉर्चर करते हैं एनिमल्स को, उनको गवर्नमेंट की लॉज से तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन लॉज ऑफ नेचर से, लॉ ऑफ कर्मा से, जो लॉज ऑफ कर्मा जो उनको नहीं पता है, वहां से उनको सबको पनिशमेंट मिलेगा, है ना, क्योंकि उन्होंने करने को रोक दिया। दीज लॉ मेकर्स क्या है? दीज लॉ मेकर्स आर ह्यूमंस बट दे आर नॉट बेसिकली ह्यूमन, दे आर नॉट ह्यूमन, उनकी ह्यूमैनिटी के अंदर, बिकॉज एनिमल्स को मारना कोई ह्यूमैनिटी की निशानी तो नहीं है ना, दिस इज ऑल इग्नोरेंस, टोटल इग्नोरेंस। हमारी लॉज भी इग्नोरेंट है, हमारे लॉ मेकर्स भी इग्नोरेंट है। तो इग्नोरेंस इक्वल्स पेन, ignorance equals pain, ignorance will lead to pains either now or in the future। जो भी लोग खाएंगे, मीट ईटिंग करेंगे, उनको आज नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। लॉ ऑफ कर्मास एंड लॉ ऑफ नेचर विल डेफिनेटली एक्ट अपॉन देम। सो अब ये सारी बातें हमने क्यों करी है? ताकि हम ये समझ सकें अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है। नाउ हम बात ये कर रहे थे कि क्या महाभारत में जो युद्ध हुआ वो हिंसा है या अहिंसा है? व्हाट डू यू थिंक, इज दैट वायलेंस और नॉन वायलेंस? कैन यू हियर मी? नॉन वायलेंस। सो महाभारत में जो इतने, उसके बाद भी वो नॉन वायलेंस था। वो कैसे था कि अगर वो नॉन वायलेंस उस टाइम पे नहीं होता, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि एक अगर हमारे फिंगर के अंदर जहर आ गया है और वो जहर पूरी बॉडी में फैलने वाला है, इज दैट अ वायलेंस? अगर हम फिंगर को काट देते हैं ताकि वो जहर पूरी बॉडी में ना फैले, इज दैट अ वायलेंस टू द फिंगर और नॉन वायलेंस टू द बॉडी? Definitely that's a non-violence to the whole body. Not because finger is small and the body is big, but because the spiritual spark, the soul is sitting inside this body. Spiritual spark की जो जर्नी है वो नहीं रुकी, जो हमारी सोल की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, वो नहीं रुकी। फिंगर भी कट गई तो कोई बात नहीं, लेकिन इसी तरह से महाभारत इज एक्चुअली अ धर्म युद्ध। उसमें रिलीजन को बचाना था। अगर रिलीजन नहीं बचता तो आने वाली जनरेशन्स की स्पिरिचुअल जर्नी नहीं आगे बढ़ पाती। आज जो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, आफ्टर इवन 5000 years आफ्टर महाभारत टुक प्लेस, आज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज भी धर्म है। टुडे देयर इज स्टिल धर्मा इन द सोसाइटी, ओनली बिकॉज कि उसके बाद वंश से राज किया गया। अगर वहां पे कौरव आ जाते या दुर्योधन राज करते तो आज धर्म बचता ही नहीं, सबको डीमंस बन जाते हैं। आज भी ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि बहुत हमारी सोसाइटी में डीमंस बहुत ज्यादा है, डीमन प्रोपेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी आज धर्म बचा हुआ है। तो धर्म को जनरेशन में धर्म को, लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी को सेफगार्ड करने के लिए भगवान खुद आए थे उस टाइम पर। भगवान खुद आए थे इसीलिए ताकि धर्म बचा रहे, कृष्ण खुद आए थे ताकि धर्म बचा रहे और जितना भी अधर्म है वो धरती से साफ हो जाए। सो दैट वाज द रीजन, इट वाज एन एक्ट ऑफ नॉन वायलेंस, इट वाज नॉट एन एक्ट ऑफ वायलेंस। क्योंकि और भगवान खुद आए थे, इसका मतलब भगवान जितने भी लोग सारे के सारे भगवान के घर में गए। ऐसा नहीं है कि वो भगवान का मतलब किसी को मारने का ऐसा नहीं होता है कि उनको कुछ पनिशमेंट देना है बुरी तरह से। उनका सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि वो सारे उनके बच्चे हैं, उनको सिर्फ इतना होता है कि वो धर्म को बचा के रखें। और धर्म क्या होता है? व्हाट इज धर्मा? व्हाट इज धर्म? प्राचीन ने
of dharma, duty. आप समझिए धर्म इंटरेस्टिंग चीज है. धर्म जैसे कि कोई क्रिश्चियन है, उसका रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, कोई हिंदू है, उसका रिलीजन हिंदुइज्म है, कोई मुस्लिम है तो उसका बोलते हैं इस्लाम. उसका ये नहीं है. ये सारे ऐसे जैसे स्कूल्स होते हैं, अलग अलग स्कूल्स, दीज आर जस्ट द स्कूल्स टू एजुकेट अवरसेल्व्स. लेकिन धर्मा क्या होता है? प्रभुपाद जी कहते हैं धर्मा इज दी आवर व्हाट वी ऑप्ट टू डू, व्हाट वी ऑप्ट टू डू. जिस ऑब्जेक्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है या जो उसका स्वभाव होता है वो धर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल फायर, फायर का स्वभाव क्या है? हीट एंड लाइट. फायर से अगर हीट निकाल देंगे तो वो फायर नहीं रहेगी. ऐसे ही हमारा सोल का जो धर्म है वो क्या है? सर्विंग, सर्विंग गॉड. सोल का धर्म है सर्विंग गॉड. और सनातन धर्म का मतलब होता है एटर्नली सर्विंग गॉड. सो हम धर्म की स्थापना करने का मतलब है सर्विंग गॉड. और सर्विंग गॉड का मतलब क्या हुआ? लविंग गॉड. बिकॉज सर्विस इज द एक्टिविटी, बिकॉज लव इज एन एक्शन, लव इज एन एक्टिविटी. तो लव टुवर्ड्स गॉड इन सर्विस, दैट्स द धर्म ऑफ सोल. अगर ये धर्म है तो इसका मतलब ये एक वन वर्ड में बोलेंगे तो लव, लव टू गॉड इज अवर धर्मा. तो आप सोचिए भगवान लव को इस्टेब्लिश करने के लिए आते हैं. धर्म को इस्टेब्लिश करने का मतलब है कि भगवान लव टुवर्ड्स गॉड को इस्टेब्लिश करने आते हैं. और जो हेट्रेट करते हैं, जो लव को दूर कर, लव से दूर जाते हैं, उन सबको यहां से वापस, ताकि वो लव को आगे बढ़ने दे. जैसे दोबारा से मंदिर की वो सीढ़ियां देखते हैं ताकि ये सारे जीव जो चल रहे हैं इनकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती रहे. इसलिए भगवान आते हैं. तो ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वो नॉन वॉयलेंस, इट वाज एन एक्ट ऑफ. जब नेक्स्ट सेशन करेंगे और भगवत गीता के बारे में एक्चुअल पढ़ना शुरू करेंगे तो ये नहीं लगना चाहिए किसी को भी कि अरे हम तो वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉलेज ऑफ द वॉर, दिस इज वॉयलेंट. सो इससे हमें नॉलेज कैसे मिल सकती है? सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट महाभारत वॉज एन एक्ट ऑफ नॉन वॉयलेंस. सो आज की क्लास यहीं तक. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं और मैं एक ईमेल भी बना दूंगा, आपको भेज देता हूँ. यहाँ पे एक ईमेल है. दिस इज द ईमेल golokplanet@gmail.com. सो आप इस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं अपना, अगर कोई क्वेश्चन है तो. आप एक्सपेक्ट so we will be getting that. Yeah, we will be getting that. So next platform, next class मैं कल बताऊंगा. I'll tell you tomorrow on which platform we'll be doing the next session. So for now, I want to thank you all for coming. And Wednesday is going to be the next session. Wednesday evening, 8 o'clock. So I'll tell you which platform. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो उस पर भेज सकता है. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.